Hey students, my name is Shefali and I'm a teacher by profession. Once I was teaching in my class about food and from where we get energy. So a child came to me and he asked me, ma'am, plants are also living beings. If we get energy from food, then from where plants get energy? I said, beta, plants also get energy from food. Then he said, मैम बट मैंने प्लांट्स को कभी भी खाना खाते नहीं देखा. I mean, really, this was a good question and I thought that there would be many of the students जिनके दिमाग में confusion होता होगा कि plants खाना कैसे खाते हैं. So in this video, I'm going to tell you about the nutrition in plants, that from where plants take the nutrition. Obviously, we get nutrition from food and how plants get food. We're going to study about this in this video. सबसे पहले there are two modes of nutrition in plants, autotrophic and heterotrophic. Plants के खाना खाने के दो तरीके हैं, autotrophic and heterotrophic. So first we are going to study about the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic. Auto means what? ये वो वाला ऑटो नहीं जिसमें बैठ के आप कहीं राइड पे निकल जाते हो. ऑटो मीन्स अपने आप. लाइक यू मस्ट हैव सीन कैमरा में ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक मशीन्स आ जाती हैं जिसमें आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, दे डू इट देमसेल्व्स ओनली. तो ऑटो मीन्स अपने आप एंड ट्रॉफिक मीन्स टू सिंथेसाइज, मतलब अपने आप बनाना. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपने आप बनाना. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. Many plants, some plants are heterotrophs but many plants are autotrophs, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. And heterotrophic means जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, they'll have to depend on other, कि दूसरे का खाना हम खाएं, दूसरे से हम खाना derive करें. And हम we are studying about autotrophic, so we'll go further with this. Okay, now I'm saying autotrophic, हम अपना खाना खुद बनाते हैं, but खाना तो हम खुद ही बनाते हैं. मैं भी अपना खाना खुद बनाती हूँ, तो मैं क्या मेटोट्रॉफिक हूँ? व्हाट डू यू से? मैंने कभी खाना किसी और से नहीं बनवाया, मैं खुद खाना बना रही हूँ. इट मीन्स आई एम ऑटोट्रॉफिक. डू यू थिंक सो? नो, आई एम नॉट ऑटोट्रॉफिक बिकॉज आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं सब्जियां मार्केट से ला रही हूँ, लेकिन वो सब्जियां आई कहाँ से हैं? वो प्लांट से आई हैं. बट प्लांट्स में दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट. आर दे गोइंग टू द मार्केट? फिर वो किचन में जा रहे सब्जियां बना रहे हैं? नो, वो अपने एक जगह पे स्टिल खड़े हैं. When they feel hungry, उनकी बॉडी में ही खाना प्रकट हो जाता है और वो खाने को absorb कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं. So it means they have some supernatural powers. Do they really have some supernatural powers? Let us see. We can say that they have a supernatural power, and we can say the name of supernatural power is photosynthesis. Photosynthesis. This is a very important term. Photo means light and synthesis means to make food in presence of light. अगर हमें खाना, if we want to make food, अगर हमें खाना बनाना है तो हमें कुछ raw materials चाहिए. Suppose I have to make dal, then I need pulses, I need onion, I need oil, namak and all masalas. Then I'll process all these things in the kitchen. I'll make the food. But how will plants make the food? They also need some raw materials. Now what are their raw materials? हम plants के ingredients जानते हैं कि कौन कौन से ingredients use करके वो खाना बनाते हैं. First thing they need water and minerals. पानी के बिना तो कोई खाना बन ही नहीं सकता. Second they need carbon dioxide. Third they need, what they need? Chlorophyll. And fourth, the most important, they need sunlight. ये सब इनके रॉ मटेरियल्स हैं खाना बनाने के लिए. लेकिन ये लाते कहाँ से ये सारा सामान? कौन सी मार्केट में जाके लेके आते हैं? तो we'll get to know, we'll study about it from where they get all these things. Water and minerals. We all know that water is present under the ground. जमीन के नीचे पानी है, and हमें पता है the roots of the plants are under the ground, so they take water from the ग्राउंड. जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से पानी लेती हैं, बट रूट्स के बाद जो पानी है वो इतना ऊपर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? बिकॉज प्लांट इज रियली रूट. देयर आर सम प्लांट व्हिच आर रियली रूट. तो कैसे पहुंचता है पानी? दे हैव सम वेजल्स. पतले पतले वेजल्स होते हैं. वेजल्स क्या होते हैं? पाइप होते हैं. पाइप से पानी ऊपर चढ़ता है,
इन द सेम वे रूट से देयर आर वेजल्स आर कनेक्टेड, वो वेजल्स ब्रांचेस में जा रहे हैं, लीव्स में जा रहे हैं, फ्रूट्स मतलब जब जो भी पार्ट्स हैं आपके प्लांट्स में वो वेजल्स हर जगह जा रहे हैं और वो पानी वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं. तो वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट्स के थ्रू प्लांट्स में पहुंच रहा है फ्रॉम द वेजल्स ओनली. देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हवा में पानी है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहां से ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. बट कैसे कैसे वी हैव नॉस्ट्रिल्स, हम एयर वहां से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं. बट प्लांट्स में कोई नॉस्ट्रिल्स नहीं है, प्लांट्स में कोई लंग्स भी नहीं है, तो कैसे हो रहा है ये? लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द लीफ ऑफ अ प्लांट. इस लीफ के अंदर स्टोमेटाज होते हैं. Stomatas are responsible for the exchange of gases. Stomata याद रखिएगा, stomata. This opening यहां से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, ये कहां से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है. एंड दिस ओपनिंग जो है यहां से हो रहा है. एंड दीज टू आर नोन एज गार्ड सेल्स. गार्ड जो पहरेदारी करते हैं ना, दीज आर गार्ड सेल्स. आपके स्टोमेटा की रक्षा कर रहे हैं ये लोग. सो दिस इज द स्टोमेटा. थ्रू द स्टोमेटा ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस. नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ गॉड गिफ्ट टू देम. अब देखो बेचारे प्लांट्स चल भी नहीं सकते, कोई मस्ती नहीं कर सकते लाइफ में, तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने उनको दिया होगा ना कि बेचारे भूखे ना मरे, तो उन्होंने उनके अंदर ही क्लोरोफिल दे दिया. तो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द लीव्स ओनली. दिस इज द रीजन लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर. हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है. व्हाई? बिकॉज ब्लड हैज हीमोग्लोबिन एंड दे हैव क्लोरोफिल. अगर हमारे ब्लड में क्लोरोफिल होता तो हमारा ब्लड भी ग्रीन होता. तो you'll see any plant which is of green color, it means it has chlorophyll. Next we have sunlight. सनलाइट तो सभी के लिए, सूरज देवता इतने महान, इतने काइंड है, वो तो सभी को सनलाइट दे रहे हैं, किसी से पार्शियलिटी नहीं कर रहे. इफ दे आर गिविंग इट टू अस देन गिव इट टू प्लांट्स ओनली. नाउ क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है. क्लोरोफिल जो है वो सन की लाइट को ट्रैप करता है. सन की लाइट हम पे पड़ रही है लेकिन हम उसको एब्जॉर्ब करके अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. प्लांट्स कर सकते हैं. जितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट दे नीड दे विल ट्रैप इट. हाउ? फ्रॉम द क्लोरोफिल ओनली, बिकॉज क्लोरोफिल हैज द पावर टू ट्रैप द sunlight. So this is very important thing. What did we study? The 4 raw materials of the plant, the ingredients, which are they? Carbon dioxide, water minerals, chlorophyll and sunlight. ये सब मिलजुल के जो है एक प्लांट के लिए फूड बनाते हैं. बट कहाँ? हम तो अपने घर में किचन में बनाते हैं. अब प्लांट्स की किचन कौन सी है? They also have kitchen. That is leaf. Leaf is the kitchen of plant. Leaf is also known as the food factory of plant. पूरा का पूरा जो इतना बड़ा ह्यूज वृक्ष, इतना बड़ा महान विशाल वृक्ष है ना, वो किस लिए जिंदा है, किसकी वजह से जी रहा है? लीफ की वजह से. Leaf is responsible for making food. Leaf is responsible for the exchange of gases. Leaf is responsible for transpiration. Now what is transpiration? Transpiration is loss of water. Sweating होती है, प्लांट्स को भी होती है, इसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं. क्या ट्रांसपीरेशन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर सकेंगे. अभी हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं अपना. नाउ अब लीफ इज द किचन. अब किचन में हमने खाना बनाना है तो विल पुट अ कुकर. कुकर में खाना, ये वो. अब इनका भी कैसे होता है देखिए. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होगा बताओ मुझे. देयर वर हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स वर देयर? वाटर मिनरल्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं और वाटर को हम H2 लिखते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, याद रखना आपको ये जरूर लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दिस इज द इक्वेशन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. इट डेफिनेटली कम इन द एग्जाम. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. This is the equation and this is very important equation.
वो कुछ नहीं लर्न करना। आपको रॉ मटेरियल्स अगर लर्न है तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास 4 रॉ मटेरियल्स थे और हमने 4 चीजों का यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। जब ये सब मिल जाते हैं तो जैसे हमारा खाना तैयार होता है, इनके पास कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा था ना कि फूड जो है, फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। तो दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को वो एज अ फूड यूज करते हैं। फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट ओनली दे गेट एनर्जी। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ वेस्ट फॉर देम। आपने खाना खाया, सारा का सारा खाना तो आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। यू गो टू द वॉशरूम, आपका जो बॉडी में जो वेस्ट है उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है। इन द सेम वे ऑक्सीजन इज अ वेस्ट फॉर देम। बट देखो बेटा, जो वेस्ट इनके लिए है वो हमारे कितने काम का है, हम इनके वेस्ट के बिना जी नहीं सकते। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight, chlorophyll, they will make carbohydrate and oxygen. Carbohydrate is really very important for them because the carbohydrate is the food for them. This give energy to them, and oxygen is the waste. So this is the autotrophic mode of nutrition in plants. All the green plants यही वाला mode of nutrition करते हैं, autotrophic. And the plants which are not green, yes, there are some plants which are not green but still they are living, still they are surviving. How? In the next video, matlab in the upcoming video, I'll be sharing with you guys that. So that was all about my video. If you liked it, then hit the like button and you can subscribe my channel for the more upcoming videos. And if you have any query about this chapter, then you can comment on the comment box. एंड इफ यू वॉन्ट कि मैं किसी और टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करूँ, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट मी। आई कैन टीच यू टिल 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट ओनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. In these 3 subjects, physics, chemistry, biology, if you have any topic you are not able to clear your concepts, then you can comment in the comment box. I'll definitely surely try to make my video on that. So thank you so much. Bye bye and take care.